چلیے یہ تو تھے دو انٹرپرینرز آپ کے بیچ سے ہی جنہوں نے کی اسکریچ سے شروعات کی اور آج انہوں نے ایک اچھا خاصا ٹرن اوور اچیو کیا ہے اور یہ اسمال سے میڈیم سیگمنٹ میں تو آ ہی چکے ہیں اور لارج کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جب بات فائنینس کی ہوتی ہے تو ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ آخر اگر فائنینس چاہیے تو کس لیول پہ آ کر فائنینس کی ضرورت کمپنی کو پڑتی ہے اور کس لیول پہ آ کر فائنینس کے لیے آپشنز وکلپوں کی تلاش کرنی چاہیے. اپنے پہلے سے اس سوال کو میں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے رمیش سوری صاحب سے. کس لیول پہ آ کے کمپنی ایک اسٹارٹ اپ ہے اس نے بزنس شروع کیا آخر اس کو کس لیول پہ آ کے اب فائنینس کے تمام وکلپوں کی طرف دیکھنا چاہیے؟ یہ تو بزنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آگے کتنا اس کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کا پلان 3 سال کا 2 سال کا 5 سال کا کیا پلان ہے ہمارا اور کتنا آگے بزنس کا اسکوپ ہے اور اس کے لیے کتنی فنڈنگ چاہیے. آپ کے پاس انٹرنل اپروول کیا ہے, آپ کے پاس اپنے ریسورسز کیا ہیں اینڈ اور سپورٹ کیا چاہیے فائنینس انسٹیٹیوشن کی اور بینک کی. اس بیسس پہ ورک آؤٹ کر کے دین فائنینس کا انتظام کیا جانا چاہیے. میرا وچار فائنینس کے بارے میں تھوڑا اسٹرانگ ہے. میں ہمیشہ ایڈوکیٹ یہ کرتا ہوں کہ فائنینس جب لے آدمی تو ون مسٹ کیپ ہز آئیز اینڈ ایئرز ایبسلیوٹلی اوپن. فائنینس لینا تو بڑا اچھا لگتا ہے بٹ ایز آئی واز ٹیلنگ کوور اینڈ مسٹر بھلا وین وی ور ٹاکنگ کہ فائنینس لے کے اس کو مینج کرنا از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اب دیکھیے آپ انڈسٹریلسٹ, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار یو. ایس ایم ایز جیسے اسٹارٹ اپ یونٹس ہوتے ہیں, ہم بھی ایک ٹائم پہ ایسے ہی اسٹارٹ اپ کیے تھے. ہم ایک نیشنلائز بینک سے ڈیل کرتے تھے, ان کا ہیڈ کوارٹرز کہیں ساؤتھ انڈیا میں تھا. کچھ لاکھ روپے لینے ہوتے تھے تو وہ بھی وہاں جا کے 3 دن کیمپ کر کے لے کے آتے تھے. اس کے بعد میں ہماری کور ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کو بزنس کو پوزیشن کرنا چاہیے. ناؤ واٹ از پوزیشننگ؟ پوزیشننگ از وی شوڈ ہیو اے کوالٹی پروڈکٹ اینڈ بیک اپ دا کوالٹی پروڈکٹ وتھ سروس. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری ایک برانڈنگ ہو جاتی ہے. اگر برانڈنگ ہو جاتی ہے تو اس سے مارکیٹ کے اندر ہماری ویلیویشن ہو جاتی ہے. ناؤ obviously any startup unit, as I said, including Sudhir Gensets, ہم کو بینک سے جا کے فائنینس لینا پڑا. بٹ while we were conducting our business اور ہم نے اپنی برانڈنگ مارکیٹنگ میں اسٹیبلش کی, اپنی ویلیویشن اسٹیبلش کی, اس کے بعد میں you find that you are able to realize the price for the business what you are conducting. Otherwise, in a cutthroat competition, you generally say that you are not able to realize the price. If you don't realize the price, then the cost of finance, what you have, and as I was talking to my friend here, as you build the organization, you grow the organization, the overheads, they have to be kept in mind. So fundamentally in every organization, what all of you people should understand, because I would like کہ SMEs آگے گرو کر کے اور اوپر نکل کے آئیں. دس از دا وے آئی وڈ لائک اٹ, بیکاز ایک ٹائم پہ ہم ہی اسی کیٹیگری کے لوگ تھے. الٹیمیٹلی آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو ٹو کیپ ان مائنڈ ویدر یو ہیو اے ٹرن اوور آف 50 crores اور 1,000 crores اور 1,500 crores. There is no point having a top line if you do not have a good bottom line. آپ سے اب لگاتار آپ لوگ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہزاروں ایس ایم ای سے آپ ڈے ٹو ڈے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. جب فائنینس کی بات ہوتی ہے تو کون کون سے ایسے آپشنس ابھی اویلیبل ہیں اور بیسٹ آپشنس کیا ہیں ایس ایم ایز کے لیے جب بات فائنینس کی ہوتی؟ پیوش, what I strongly believe is finances are available, all kind of finances are available, whether it's debt, whether it's equity. As Honorable Minister Saab also said, there's a credit guarantee scheme up to 1 crore which is available, collateral free, without any third party guarantee. That's also available from nationalized and all the commercial banks. It's purely a function of what stage of business you are at, right? That's primary. لیٹس سے اسٹارٹ اپ, ایک اسٹارٹ اپ ہے جس نے بزنس ابھی شروع کیا, اس کا ٹرن اوور 1 کروڑ 2 کروڑ کے آس پاس پہنچا ہے ابھی, اور اس کے بعد اب اسے فائنینس کی تلاش. تو بیسٹ آپشن, کیونکہ زیادہ تر آڈینس جو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں وہ بھی اس دائرے میں اور اس سے اوپر آواز کے, تو اس رینج میں آ کر ان کو بیسٹ آپشن ان کے لیے کیا اب ہونا چاہیے جس سے انہیں ٹارگیٹ کرنا چاہیے؟ فائنینسنگ فرام دا بینک, ریزنگ ڈیٹ فرام دا بینک از دا بیسٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. That's what I believe.
But I just want to deviate and slightly add on to this. I think commercial banks in India, right, they've traditionally been helping SMEs on the lending side, on the debt side. They need to come out now on the equity side. And what I mean to say by that is, on one end of the spectrum, they have HNI customers, right? They have customers like Shuri Saab, Sudhir Saab, right? And there are ideas available with startups, with people who have graduated from good MBA schools, right? They have beautiful ideas, they have good process orientations, right? So the banks should take the lead in getting all these together, right? And having some kind of a venture funding or some kind of a seed funding available to these smaller entrepreneurs, right? Which is a very good way of funding. राकेश गुप्ता साहब हमारे साथ, आप CFO हैं, फाइनेंशियल देखते हैं आप कंपनी के, क्या जब बैंक चूज करना चाहिए तो बैंक चूज करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और बेस्ट ऑप्शन क्या हो इसके लिए तलाशनी चाहिए क्या? Actually, when you start a business, you start dealing with a bank in a normal course of business. That bank is the best bank whom you should approach for your funding needs, because he understands your business, he understands your cash flows, he understands what your needs are, how your cash flows are happening, and that way, if you approach your regular banker, that will be the best possible thing. Okay. राजीव चावला साहब भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण, आपसे हमारा एक बड़ा ही एक्सक्लूसिव सवाल है जो कि हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दें, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा राजीव चावला साहब से। राजीव, अभी ऑडियंस में से किसी ने हमारे माननीय मंत्री महोदय से भी सवाल किया कि जो क्रेडिट फ्री, गारंटी फ्री लोन की जब बात होती है तो 1 करोड़ तक की लिमिट होती है, उसको बढ़ाना चाहिए, वो अपनी जगह है। एक सवाल ये भी था कि वो लोन मिलता ही नहीं है, क्या ऐसा है? 6 लाख से ज्यादा लोन इस देश में बिना कोलेटरल गारंटी के इस स्कीम के तहत कवर हो चुके जी। तो 6 लाख एंटरप्रेन्योर्स तो इस देश के ऐसे हैं जो इस बात को विटनेस करेंगे, वाउच करेंगे कि ये लोन मिलता है। आप पर्टिकुलरली मुझसे बात करें तो मैं बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जिन्हें इस तरह का लोन बैंक से मिलता है। एक क्या ख्याल क्या रखना चाहिए, आखिर कहां पे एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं अपने आप को प्रोजेक्ट करने में? इंपॉर्टेंट चीज, एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्या मैं क्रेडिट वर्दी हूं? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को, जो कि हमारा ड्रीम होता है, उस ड्रीम को हम कैसे एक वर्क प्लान में शेप देते हैं, और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को उनके सामने रखते हैं कि वो उसमें आके हिस्सा बने, उसको फंड करें। तो मुझे लगता है कि सभी एंटरप्रेन्योर्स को, इनफैक्ट स्टार्टअप्स के लिए भी एक प्रश्न पूछा गया कि स्टार्टअप के पास, क्योंकि नया काम है तो उसके पास इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं है, तो उसे कैसे लोन मिलेगा? तो एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है, उसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी जो है, ये जो लोन मिलता है उसके लिए सर्विस सेक्टर की जब बात हो तो थोड़ा सा बैंक लीनियंट अगर हो जाए तो एंटरप्रेन्योर्स को काफी मदद मिलेगा। पीयूष जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटरप्रेन्योर्स को यह भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि एक फिस्कल डिसिप्लिन, जैसे सभी डेट सर्विसिंग की बात हो रही है कि जो लोन लिया उसको चुकाना भी जरूरी है, तो फिस्कल डिसिप्लिन अपने वर्किंग कैपिटल को, जो रॉ मटेरियल का धन है, उससे अपनी फिक्स्ड एसेट्स में इस्तेमाल ना करें। आमतौर पे होता है कि हम रॉ मटेरियल का पैसा या वर्किंग कैपिटल सीसी लिमिट्स है, उससे कोई मशीन लेके ऐड कर लेते हैं। सर, ये तो आपने फिर भी बहुत टेक्निकल बात बताई। सबसे बड़ी चीज है कि बिजनेस का पैसा बिजनेस के लिए लगा के रखना चाहिए वो सबसे बड़ी चीज है। लक्ष्मण, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जब हम इनसे मिलने गए थे क्लस्टर में तो भी बहुत सारे लोग थे जो कि आपको सुनना चाहते थे, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ये इस एसएमई स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कर रहा है। क्या है ये स्टॉक एक्सचेंज, कैसे इसके जरिए पैसा मिल सकता है? यू आर राइट, एक्चुअली इवन 5-10 करोड़ की टर्नओवर जो है, ये एसएमईज भी लिस्टिंग के लिए आ सकती है, ये भी IPO ला सकती है, ये भी फंड राइज कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैंडेट के बाद एक्चुअली रेगुलेटर्स ने भी काफी स्टेप्स लिया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी काफी स्टेप्स लिया है। अभी करीब 35-40 कंपनीज का IPO ऑलरेडी रेडी हो रहा है, ऑलरेडी 8-10 कंपनीज का ऑलरेडी IPOs भी रेडी हो चुके हैं, वो प्रोसेस में है। हम लोग अप्रूवल देने वाले हैं अभी ये महीने में, और अगले महीने में जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर तो इधर है ही, फाइनेंस मिनिस्टर से भी कंसल्ट करेंगे और हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जी। तो इसमें ये कोई जरूरत नहीं है कि कुछ मिनिमम कोई कंपनी का टर्नओवर कुछ हो, इसमें जो भी है मैक्सिमम ये रखा गया है
25 करोड़ पेड अप कैपिटल तक एसएबीज जो है बीएसई एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है अप टू 25 करोड़ अप टू 25 करोड़ और मिनिमम साइड में आईपीओ में मिनिमम 50 इन्वेस्टर्स होनी चाहिए एंड ईच इन्वेस्टर मिनिमम 1 लाख लगाना चाहिए, मिनिमम आईपीओ 50 लाख का भी हो सकता है। चलिए, ये तो बात ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई स्टॉक एक्सचेंज इस प्लेटफॉर्म पे इस पे हमारे तमाम ऑडियंस में सवाल यकीनन है। हम चाहेंगे कि आप ये सवाल करें, क्वेश्चन आंसर सेशन हम शुरू करें। उसके पहले मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सुधीर सेठ साहब से। सर, जब फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी की बात होती है एक स्मॉल यूनिट के लिए, मीडियम यूनिट के लिए, तो वो फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी किस तरह से इन यूनिट को डिसाइड करनी चाहिए, कैसे तय करनी चाहिए? हम तो ये एडवाइस करेंगे कोई भी स्टार्टअप या न्यू यूनिट को कि हर यूनिट की फंडामेंटली रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट से निकलती है। तो जब आप उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि ये यूनिट के अंदर आपकी नीड क्या है, या आपकी नीड 1 करोड़ है, या आपकी नीड 5 करोड़ है, या आपकी नीड 10 करोड़ है। जब आपको अपनी नीड मालूम पड़ जाए तो उसको नीड को देखते हुए आपको अपना फाइनेंस प्लान करना चाहिए, और फाइनेंस के अंदर आपके पास क्या है इन्वेस्ट करने के लिए, और उसको छोड़ के उसके अलावा आपको क्या बोरोइंग करनी है। बिकॉज लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू पीपल, इनिशियली जो भी स्टार्टअप यूनिट है उसको तो जाके बैंक से बोरोइंग करनी पड़ेगी, बट स्टार्टअप यूनिट के लिए मेरे ख्याल से आपकी जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको लेके ही लोन करें। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा एक्सटेंसिव लोन ले लें। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो कंफर्ट भी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा है कई बार, टू बी वेरी फ्रैंक, कई इंडस्ट्रीज को देखा है कि अगर उन्होंने बोरोइंग ज्यादा कर ली, वो बोरोइंग से एकदम से आपको हाथ में पैसा तो नजर आता है, पर वो पैसा कई बार जो है उसका यूजेज जो कि आइडलिस्टिक वे में होनी चाहिए वो नहीं होती है, और उससे पैसा कई बार लॉसेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आई वुड एडवाइज यू पीपल टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज आफ्टर ऑल जो पैसा आप बोरो कर रहे हैं वो आपको पे तो करना ही है, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। काफी इंटरेस्टिंग इस वक्त डिस्कशन है, लेकिन कई ऐसे सवाल है कि आखिर जब बात फाइनेंशियल प्लानिंग की हो किसी स्टार्टअप के लिए, तो किस तरह से उसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, किस कड़ी पर आकर उसको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, और बैंकों को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम जानेंगे अपने तमाम पैनलिस्ट की राय, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।